بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اگلا ہمارا سبق جو ہے وہ جنس کے متعلق ہوگا۔ عربی کے الفاظ کو جنس کے اعتبار سے ہم پہچانیں گے۔ جنس کے اندر دو چیزیں ہر زبان کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی ذکر کی جاتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو ہم نے عربی زبان میں یہ پہچان کرنی ہے کہ کن کن الفاظ کو عربی میں مذکر استعمال کیا جاتا ہے، کن الفاظ کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نحو نے، جو کہ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا، نحو ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عربی کے اسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے استعمال کے متعلق بتلایا جاتا ہے۔ علماء نحو نے تمام اسماء میں سے یہ دیکھا کہ عربی میں کون کون سے الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی خاص علامت نہیں ملی، لیکن مؤنث کے لیے کچھ علامات انہوں نے پائی، جن کو انہوں نے گرامر کے اندر علامات تانیث کے نام سے بیان کی۔ علامات تانیث۔ چونکہ مذکر بنانے کے لیے کوئی خاص علامت عربی زبان میں موجود نہیں تھی، لیکن علماء نحو نے یہ دیکھا کہ علامات تانیث مؤنث بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ علامات استعمال ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان کو علامات تانیث کے عنوان سے جمع کیا تاکہ ہمارے لیے پہچان کرنے میں آسانی۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو عربی سیکھنا چاہتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ کسی بھی لفظ کو اپنے جملے میں استعمال کرنے کے لیے یا اس کی پہچان کرنے کے لیے علامات تانیث کو سامنے رکھے اور پھر جنس کو متعین کرے تاکہ استعمال میں غلطی نہ ہو۔ علامات تانیث کے اندر سب سے پہلے ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ جنس میں دو چیزیں جو ہم نے پڑھا، مذکر اور مؤنث۔ اس کی پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کام کریں گے کہ اس لفظ کا ہم معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے علامات سے بھی پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس لفظ کا معنی معلوم کرنے کے لیے کچھ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد یا پہلے سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں ہونے کی وجہ سے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہونے کی وجہ سے، ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا عربی زبان کے اندر اس لفظ کے مقابلے میں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی مذکر لفظ یا کوئی مؤنث لفظ اس کے مقابلے میں بطور اس کے جوڑے کے موجود ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے سامنے ایک لفظ آیا، ام کا لفظ، اور ہم نے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کی اور ہمیں پتا چلا کہ اس کا معنی ہے ماں۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابلے میں، باوجود اس کے کہ اس میں ہمیں ظاہری طور پہ لفظوں میں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا معنی معلوم کرنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ ماں کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اور لفظ بطور متضاد کے، اس کے مقابلے میں بطور اس کے جوڑے کے دوسرا لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ ہے باپ۔ عربی میں اب اس لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بنتن، بنتن کا لفظ ہمارے سامنے آیا، اور اس کے ترجمے میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بنتن کا معنی اور اس کا ترجمہ بیٹی کیا جاتا ہے اردو میں۔ تو باوجود اس کے کہ کوئی علامت موجود نہیں ہے، ہمیں اس کے ترجمہ کرنے سے ہی یہ پتا چلا کہ اس کے مقابلے میں چونکہ ایک اور مذکر لفظ جو کہ بیٹا ہے وہ موجود ہے، تو ہم اس کو بغیر علامت کے مؤنث شمار کریں گے۔ تو ایسے تمام الفاظ جو صرف ترجمے میں ہی غور و فکر کرنے سے، بغیر علامت کے پائے جانے کے، ہمیں صرف ان کے مقابلے میں کسی نر، کسی مذکر جوڑے کے استعمال کی وجہ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم گرامر کی زبان میں مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ مؤنث کے وہ الفاظ جو صرف
बगैर अलामत के उसके मुकाबले में किसी लफ्ज के होने की वजह से हमें मालूम हो जाते हैं, उनको हम मुअन्नस हकीकी कहते हैं। उसकी मिसाल यहां मैंने अरबी में ओम और उर्दू में इसका तर्जुमा माँ। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अलामात तानीस की तरफ, कि इसके अलावा वही चीज होगी कि हमें लफ्जों में कोई ना कोई अलामत चाहिए होगी जिसके जरिए से हमें पता चलेगा। उसको जो नाम ग्रामर में दिया जाता है हकीकी के अलावा, दूसरी किस्म जो है उसको लफ्जी मोअन्नस कहा जाता है। क्योंकि हमें अलामत कोई ना कोई लफ्जों में नजर आएगी तो हम उसकी पहचान कर पाएंगे। तो लफ्जी मोअन्नस इसको कहा जाता है। दूसरे मानों में आप इसको गैर हकीकी भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली किस्म का नाम हकीकी था, तो लफ्जी को हम गैर हकीकी भी कह सकते हैं। मुअन्नस से लफ्जी की पहचान के लिए अब हम तीन अलामात बयान करेंगे जो कि ग्रामर में बयान की गई हैं। नंबर एक, और ये तीनों की तीनों अलामतें याद रखें, किसी भी लफ्ज के आखिर में ही पाई जाएंगी। नंबर एक, इस शक्ल में ता, जिसको हम गोल ता पहले कह के हमने इराब में पढ़ा था, अब मैं यहाँ पे इसका नाम बता देता हूं, ताए मरबूता। ये अरबी में नाम है इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया। आप उसको गोलता वगैरह कह के भी याद रख सकते हैं। अरबी में इसका नाम जो है वो ताए मरबूता बयान किया जाता है, और इसलिए इसको याद रखना चाहिए ताकि ग्रामर की जबान भी हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती जाए। किसी भी लफ्ज के आखिर में या तो ये अलामत पहले से लगी हो, या हम किसी मुजक्कर लफ्ज के आखिर में ये अलामत लगा दें तो वो लफ्ज मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा, और अगर पहले से अलामत लगी हो तो हम उसको जुमले के अंदर बतौर मुअन्नस लफ्ज के इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल जैसे मुजक्कर एक लफ्ज है आलिम, और हम उसके आखिर में ये ता लगा देते हैं, इस शक्ल में लिखा हुआ लफ्ज जिसके आखिर में हमें ये गोलता नजर आ रही है, हम इसको बगैर इसका तर्जुमा जाने सिर्फ इस ता को देख के ये कह सकते हैं कि ये लफ्ज अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि ये लफ्जों में हमें बतौर अलामत के गोलता नजर आ रही है, और मुअन्नस लफ्जी के अंदर गोलता ये मुअन्नस की अलामत में से है। अगर ये हमें नजर आएगी तो उस लफ्ज को हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। फातिमा, और वो नाम भी आ जाते हैं, और जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा, तालिब से तालिबा, तो ये ता जिन लफ्जों के आखिर में नजर आती जाएगी हम उनको मुअन्नस शुमार करेंगे। दूसरी अलामत, एक अलिफ और उसके बाद हमजा। मैंने बताया कि अलामात तानीस जो हैं ये लफ्जों के आखिर में आया करेंगी। तो अरबी जबान के तमाम ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ और एक हमजा, इस शक्ल के साथ जो लफ्ज मुकम्मल हो रहे होंगे, पढ़ने में आ रहे होंगे, उन लफ्जों को भी हम मुअन्नस शुमार करेंगे, और वो मुअन्नस लफ्जी कहलाएंगे या मुअन्नस गैर हकीकी कहलाएंगे। इसकी मिसाल जैसे हम इराब के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया था, और इसका तर्जुमा, अभी तो हम इसको लफ्जी एतबार से समझ रहे हैं, तर्जुमा इसका बनता है सुर्ख रंग वाली। लेकिन हमने यहाँ पे इसको जो मुअन्नस समझा है वो तर्जमे की वजह से नहीं समझा, क्योंकि जाहिर बात है अरबी सीखने वाला जब इन अलामात को देख के मुअन्नस का फर्क करेगा तो उसको तर्जमा नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे अल्फाज उसके सामने आएंगे जिनका तर्जमा उसे नहीं मालूम होगा, तो सिर्फ इन्हीं अलामात को देख के ही वो जिन्स का मुज़क्कर मुअन्नस होने का फैसला करेगा। दूसरा लफ्ज अस्मा, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ और हमजा की अलामत मौजूद है, इस अलामत की वजह से इसको मुअन्नस समझा जाएगा। इसका भी नाम है, जैसे हमने गोलता का नाम ताए मरबूता पढ़ा है, इसी तरह इस अलिफ और इस हमजा का नाम अरबी में अलिफ ममदूदा, ममदूदा रखा गया है।
ममदूदा इसका नाम इसलिए है कि मद का मतलब होता है खींचना। जिस लफ्ज के आखिर में ये अलिफ और एक हमजा आ रहा होगा उस लफ्ज को जरा खींच के पढ़ा जाता है। अमरा, अस्मा, इसलिए इस अलिफ का नाम अलिफ ममदूदा रखा गया है। तीसरी अलामत, किसी लफ्ज के आखिर में एक छोटी सी या जिसके ऊपर खड़ी जबर लगी हो। ऐसे तमाम अरबी के अल्फाज जिनके आखिर में ये छोटी या और उसके ऊपर एक खड़ी जबर आ रही हो, उसके साथ जो लफ्ज खत्म हो रहे हो, उन तमाम लफ्जों को भी मुअन्नस शुमार किया जाता है और मुअन्नस लफ्जी, अलामती या गैर हकीकी उनको कहा जाता है। इसकी मिसाल जैसे हुस्ना, अगरचे इसका तर्जमा मालूम नहीं है लेकिन जितने अल्फाज हुस्ना, जिक्र, कुबरा, ये तमाम अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। तो इन तीनों लफ्जों के आखिर में हमें एक ऐसी छोटी या नजर आ रही है जिसके ऊपर खड़ी जबर है, तो हमें इसकी अलामत से ही पता चल गया क्या इसको हमने मुअन्नस इस्तेमाल करना है। इसको भी अलिफ कहा जाता है अरबी में, लेकिन इसका नाम ग्रामर में अलिफ मकसूरा रखा गया है। जी, तो अब हमारे सामने मुअन्नस लफ्जी की अलामती की तीन अलामतें सामने आ चुकी हैं। ताए मरबूता, गोलता जिसको कहते हैं, जिन अल्फाज के आखिर में हो वो मुअन्नस शुमार होंगे। नंबर दो, अलिफ ममदूदा, एक अलिफ जिसके बाद हमजा है। ऐसे तमाम अल्फाज हमरा, अस्मा, इन अल्फाज को मुअन्नस शुमार किया जाएगा। नंबर तीन, जिनके आखिर में छोटी या जिसके ऊपर अलिफ एक खड़ी जबर लगाई गई है और उसका नाम अलिफ मकसूरा है, इसको भी मुअन्नस शुमार किया जाता है। जी, तो ये अलामात पढ़ने का जो हमारा मकसद था कि हम उन अलामतों को पढ़ लें। इन अलामात के अलावा फिर जितने अल्फाज होंगे हम उनको मुज़क्कर शुमार करेंगे। किसी भी लफ्ज़ की पहचान करने के लिए हम उसके अंदर ये अल्फाज देखें, अलामतें देखेंगे, लफ्ज़ों में अगर मौजूद हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो हम उनको मुज़क्कर शुमार करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि मुअन्नस लफ्ज़ी जिसको हमने गैर हकीकी कहा है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है रूल्स वाला हिस्सा, जिनको हम किसी कायदे, किसी उसूल की वजह से मुअन्नस कहते हैं, जैसे ये तीन चीजें। तो इनका नाम मुअन्नस लफ्जी से आगे बढ़ते हुए अलामती भी कहा जाता है। और अलामती का लफ्ज इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा हर जबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुजक्कर मुअन्नस के कवाइद से आज़ाद अल्फाज होते हैं, जिनके लिए कोई उसूल, कोई रूल नहीं होता, बल्कि किसी इलाके के लोग, किसी जबान को बोलने वाले लोग उसे मुजक्कर इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी इलाके के लोग या अहले लुगत, अहले जबान लोग उसको किसी जगह पे मुअन्नस इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे अल्फाज के लिए अरबी में जो लफ्ज बोला जाता है वो है समाई। समाअत, हम सुनने के हिस्स को कहते हैं समाअत। तो अरबी में ऐसे अल्फाज जो सुने सुनाए किसी इलाके वालों के बोलने के ऊपर या किसी जबान वालों के उसको मुजक्कर या मुअन्नस में से अपनी मर्जी से इस्तेमाल की वजह से जो अल्फाज मुजक्कर या मुअन्नस बन जाते हैं, उनको मुअन्नस समाई कहते हैं। उसके लिए मैं अलग से यहाँ लिखता हूँ, मुअन्नस समाई। मुजक्कर मुअन्नस के जो रूल हैं वो हर जबान में अलग अलग होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम उर्दू के अंदर किसी लफ्ज को मुजक्कर बोलते हैं तो अरबी में वो लफ्ज मुअन्नस हो, उर्दू में कोई लफ्ज मुअन्नस है तो वो अरबी में मुजक्कर हो। जैसे सूरज का लफ्ज, कि हम उसको उर्दू में मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन अरबी में वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। सूरज तुलू होती है अरबी में, लेकिन उर्दू में सूरज तुलू होता है। इसी तरीके से शिप, बहरी जहाज का लफ्ज जो है वो उर्दू में मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लिश में शिप, बहरी जहाज जो है वो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हर जबान में मुजक्कर मुअन्नस के ये कवायद जरा मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह के चांद का लफ्ज हम उर्दू के अंदर मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंग्लिश में मून मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। मुअन्नस समाई की मिसाल मैं बयान करता हूँ, दही का लफ्ज। अब
इंडिया के अंदर दो मुख्तलिफ इलाके हैं, एक दिल्ली और एक लखनऊ, दो अलग अलग शहर हैं। तो दही का लफ्ज जो कि उर्दू का लफ्ज है, वो एक इलाके में दिल्ली के अंदर मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे दही को खट्टा दही कहा जाता है। लेकिन लखनऊ के अंदर दही के ही लफ्ज को, एक ही लफ्ज एक ही जबान का, लेकिन दूसरे इलाके में उसको मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि दही खट्टी है। तो यही जो फर्क है, इसको हम मुअन्नस समाई कहते हैं, जो सुनने पे इलाके वालों के इस्तेमाल के ऊपर ही उसको बयान किया जाता है। तो अरबी में भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको अरब बगैर किसी कायदे के, बगैर किसी मुजक्कर मुअन्नस या अलामत के, लफ्जी या हकीकी के, उनको मुअन्नस कंसीडर करते हैं। तो वो अल्फाज क्या क्या हैं? कुछ तो अल्फाज हैं और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको मैं तरतीब से बयान कर देता हूँ। नंबर एक, हवा। हवा के लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है रीहुन। रीहुन, जिसका उर्दू तर्जमा है हवा। और ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है रीहुन, बल्कि हवा के लिए जितने भी लफ्ज अरबी जबान में बोले जाएंगे, उन सब लफ्जों को मुअन्नस शुमार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, उर्दू में भी हवा के लिए हम बहुत से लफ्ज रखते हैं। बाद नसीम का लफ्ज, जो सुबह के टाइम एक हवा चलती है, तूफानी हवा हम कह देते हैं, तुंदो तेज हवा। इस तरह मुख्तलिफ जो है अल्फाज हम कहते हैं अरबी उर्दू में हवा के लिए। इसी तरह अरबी में भी कभी बाद का लफ्ज आता है, कहीं कुरान पाक में सरसर का लफ्ज आता है, कहीं कुरान पाक में हवा के लिए समूम का लफ्ज आता है। तो जितने भी अल्फाज कुरान पाक में या अरबी जबान में हवा के लिए तर्जमा देने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो सब क्या होंगे? मुअन्नस ही इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो तीन का नाम। सर सर कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। बाद, ये भी हवा का नाम है। इसी तरह समूम, सीन, मीम, वाओ, मीम, और इसके अलावा तमाम हवाओं के नाम। नंबर दो, आग के लिए जितने अल्फाज। नंबर एक, हम आग का तर्जमा देखते हैं, अरबी में नार का लफ्ज बोलते हैं आग के लिए। तो नार उनका लफ्ज तो मुअन्नस समाई है, लेकिन इसके अलावा आग के बारे में जितने अल्फाज कुरान पाक में या अरबी में इस्तेमाल हुए हैं, चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं पहले बयान कर रहा हूँ, तो आग के लिए मिसाल के तौर पे कुरान पाक में जहन्नुम का जो लफ्ज आया है आग से रिलेटेड, तो जहन्नुम का लफ्ज भी मुअन्नस समाई में इस्तेमाल किया जाता है। जहीम का लफ्ज जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया गया। सफर का लफ्ज शदीद आग के लिए इस्तेमाल किया गया कुरान पाक में। तो आग के जितने भी नाम हैं, उन तमाम अल्फाज को अरबी में मुअन्नस और मुअन्नस समाई कहा जाएगा। कुछ लफ्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ। जहन्नम, इसी तरह जहीम, इसी तरह सफर। आग के नाम। नंबर तीन, तीसरे अल्फाज, तीसरी किस्म के अल्फाज जो मुअन्नस समाई हैं, वो हैं खम्रुन, जिसका उर्दू तर्जमा है शराब। खमरुन का तर्जुमा तो है शराब, तो खमरुन का लफ्ज अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और खमर के लिए, शराब के लिए जितने लफ्ज भी अरबी में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सबके सभी मुअन्नस समाई कंसीडर होंगे। और उसकी मिसाल खमरुन के लफ्ज के अलावा खरतूमुन, खरतूम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये भी मुअन्नस समाई है। इसके अलावा भी अगर कोई लफ्ज बोला जाएगा तो वो मुअन्नस बोला जाएगा। नंबर चार, मुल्कों और शहरों के नाम। इसके बारे में यही याद रखें कि मुल्कों और शहरों के जितने भी नाम हैं, ये अरबी जबान में उनकी सिफत बयान करते वक्त, उनको जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त हम ये जहन में रखेंगे कि जिन्स के तयन के वक्त मुल्क और शहरों के नामों को बतौर मुअन्नस के इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान, अब लफ्ज जो है वो उर्दू में बतौर मुजक्कर के मुल्क पाकिस्तान।
लेकिन अरबी में अल-ममलिकतुल पाकिस्तान उसको मुअन्नस की सिफत के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। मक्का, लाहौर, जितने भी लफ्ज है जिनको हम उर्दू में अगर शहरों के नामों को मुज़क्कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम अरबी जुमलों में उनका इस्तेमाल करेंगे तो बतौर मुअन्नस के करेंगे। नंबर 5, जिस्म के आज़ा। जिस्म के वो आज़ाद जो दो दो हैं, जो जोड़ा जोड़ा हैं, उनको जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, उनके नामों को बतौर मुअन्नस के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आंखें हैं तो दो आंखें हैं, आंख के लिए जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो मुअन्नस इस्तेमाल होगा। इसी तरह दो हाथ हैं, हाथ के लिए जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होगा उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा। पाँव के लिए, कानों के लिए, बाजुओं के लिए जो अल्फाज आएंगे, मैं दो तीन के आज़ा की मिसाल का तर्जमा लिख देता हूँ। आईनुन, आइन का तर्जमा है आंख। आंख को अरबी में आइन कहा जाता है, दो आंखें हैं तो आइन उनका लफ्ज जब तरकीब में आएगा जुमले में तो बतौर मुअन्नस क्या आएगा। इसी तरह यदुन, या और दाल, इसका माना है हाथ। कदमुन, पाँव। जी, तो अलग से वोकैबुलरी के तौर पे, जखीरा अल्फाज के तौर पे मैं इन अल्फाज को अलग से भी इंशाल्लाह लिख दूंगा, ताकि जिस्म के अज़ा के नाम अरबी में क्या हैं और सिफ़ात मुख्तलिफ क्या हैं, या जो आज के सबक के हमारे और कल वाले सबक के अल्फाज हैं 18-20 के करीब इंशाल्लाह, जो इन मिसालों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनका उर्दू और अरबी अल्फाज इंशाल्लाह मैं अलग से भी आपको भेज दूंगा ताकि उनको याद कर लिया जाए। तो आइनुन, यदुन, कदम उनका लफ्ज जिस्म के आज़ा हैं, तो इनको भी मुअन्नस, मुअन्नस समाई सिर्फ सुनने की वजह से हो सकता है कि हम और जबानों में इनको मुज़क्कर इस्तेमाल करें, जैसा कि करते हैं। हाथों को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, कानों को, कान के लिए लफ्ज मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, लेकिन अरबी में जब ये इस्तेमाल होंगे तो मुअन्नस होंगे, और किसी कायदे, किसी उसूल की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ सुनने की वजह से। इन 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा चंद अल्फाज ऐसे हैं जो इन ग्रुप्स के अलावा हैं, लेकिन उनको अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। और वो अल्फाज यहां पे मैं लिख देता हूं। नंबर 1, अर्जुन। ये कुरान पाक में बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका माना है जमीन। अर्जुन का लफ्ज मुअन्नस समाई है। आसमान के लिए कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल होता है समाउन, आसमान। ये लफ्ज भी अरबी में मुअन्नस है। हरबुन, ये लफ्ज भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, जिसका माना है लड़ाई। हरबुन का लफ्ज भी मुअन्नस है। कुरान पाक में एक और मुअन्नस समाई लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नफ्सुन, जिसका मतलब होता है जान, कोई भी जान। ये अल्फाज, घर के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है दारुन, घर को कहते हैं, तो ये लफ्ज भी मुअन्नस समाई है। जी, तो अब आपके सामने बतौर जिन्स के जो अरबी में तकसीम की जाती है और जो जो उसकी अलामत होती हैं, वो तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जिन्स में सबसे पहले मुज़क्कर को नहीं बल्कि मुअन्नस को हम देखेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बात की मुज़क्कर के लिए अरबी में कोई कायदा कुलिया अलग से बयान नहीं किया गया। तो हम ये देखेंगे कि मुअन्नस के बारे में जितनी पहचान करने की चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनको जहन नशीन करेंगे और किसी भी लफ्ज़ में उन चीज़ों को देखेंगे, अगर वो नहीं पाई जा रही उन उन अल्फाज को मुज़क्कर शुमार करेंगे। सबसे पहले ये 3 अलामात देखेंगे कि 3 अलामात पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। अगर तीनों अलामात में से कोई मौजूद है, हम उस लफ्ज को मुअन्नस कहेंगे। अगर ये अलामात नहीं है, फिर उसके बाद हम देखेंगे मुअन्नस समाई के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ये अल्फाज जो मैंने लिखवाए हैं मुअन्नस समाई में इस्तेमाल होने वाले, वो इनमें से है या इनमें से नहीं। अगर इन दो चीजों में से, मुअन्नस समाई में से और अलामती यानी लफ्जी में से, दोनों में से नहीं है,
फिर हम उसका तर्जमा मालूम करने की कोशिश करेंगे। अगर तर्जमे में हमें ये पता चल जाता है कि इसके मुकाबले में कोई और मुज़क्कर नर जोड़ा मौजूद है या नहीं है, अगर तो मौजूद है तो फिर भी वो मुअन्नस की कैटेगरी में आ जाएगा। जब वो मुअन्नस लफ्जी की अलामात में, मुअन्नस समाई के ग्रुप में और तर्जमे के जरिए कोई मुकाबले में लफ्ज मुज़क्कर होने के बावजूद इन तीनों में नहीं आता, फिर उसको हम मुज़क्कर कंसीडर करेंगे। मस्जिद का लफ्ज मिसाल के तौर पे मस्जिद का लफ्ज है। हम सबसे पहले देखते हैं कि मस्जिदुन, मीम सीन जीम दाल, मस्जिद का लफ्ज हमें इन तीन अलामात उसके अंदर नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। ऐसा नहीं होगा कि मस्जिद का लफ्ज अगर हम उर्दू में मोनस बोल रहे हैं तो हम समझेंगे कि मस्जिद अरबी में भी मोनस ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तीन अलामतें देखी मस्जिद में, गोल ता, ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, तीनों अलामत इसमें नहीं आ रही। उसके बाद हम देखेंगे कि ना मस्जिद किसी हवाओं के नामों में आ रहा है, ना आग के नामों में, ना शराब के नामों में, ना किसी मुल्क और शहर का नाम है, ना ही जिस्म के आज़ा हैं। फिर हमने इसको इसमें देखा, जमीन आसमान लड़ाई जान घर, इन अल्फाज में भी मस्जिद नहीं आ रहा। फिर हमने देखा कि मस्जिद के मुकाबले में कोई और मुज़क्कर लफ्ज मौजूद है या नहीं, तो हमें इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर लफ्ज नजर नहीं आया। तो मस्जिद का लफ्ज अब हम अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे इंशाल्लाह जो आप उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, और इस नक्शे की मदद से आप पहचान लेंगे कि वो अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बारे में अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि जिन्स के एतबार से जो तकसीम है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अगला सबक जो अरबी का होगा वो अदद के एतबार से इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इसम को कैसे इस्तेमाल किया जाए।